जरा मेरे साथ साथ इमेजिन कीजिए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप बैठे हो और सामने से आपकी जिंदगी का सबसे हसीन शख्स गुजर गया हो। उसके गुजरने के चंद पल बाद एक भीनी भीनी, एक महकती सी खुशबू आती है। कौन सा इत्र है नहीं पता। वैसे ही हमारी रूह से जो खुशबू आती है, उस इत्र का नाम एजुकेशन है। किसी शख्स की रूह कितनी महकेगी, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी रूह कितनी एजुकेटेड है। अब ये एजुकेटेड वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मिसफिट लग रहा होगा कि यार एक तरफ तो रूह की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इसने एजुकेटेड जैसा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया है। देखिए, बात ही कुछ ऐसी है। एजुकेशन को समझने के लिए हम बहुत से एंगल्स में जाएंगे आज। एजुकेशन है क्या, एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों ऐसा है कि ये साली एजुकेशन अपनी औकात से ज़्यादा हमारी सोसाइटी में वैल्यू पाकर बैठी है। क्या हमारी एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज तक सीमित है या फिर हमारी डिग्रीज सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है? आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी शख्सियत एक पेज में समा जाती है जिसको हम इंग्लिश में सीवी बोलते हैं। इज दैट वन सीवी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल योर लाइफ टाइम? ये क्या है? इस एजुकेशन को जानते हैं एक न्यूट्रल एंगल से। मेरे साथ, मेरा नाम है रोहित गर्चा एंड दिस इज अहॉय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड। I welcome all the listeners. This is Ahoy with Roy presents Unheard. Today's guest, I am very fortunate कि सर आपने पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल। आज जिस कैपेसिटी में आपको बुलाया है, दैट इज़ यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी वन और एनी थिंग बट इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजुकेटर। सर, लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट एजुकेशन इज। Education is basically a way to give direction to the youth, and not just the youth actually, to anyone who wants to progress in life. Because when we look at youth, then we only focus on a certain segment, but ultimately education has to happen continuously. For professionals also, for young people, for old people, everyone needs to be continuously learning new things. We may not have a specific a particular title or a name to it, but a continuous education is required for the sustenance of the society, of the community per se. फिर थोड़ा नैरो डाउन करते हैं इसको। पहले लेट्स फोकस ऑन एजुकेशन इन द कन्वेंशनल फॉर्म। व्हाट आई मीन इज एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, राइट? सो हाउ अ ह्यूमन रिसोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। सो सर, आपके हिसाब से अभी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? मतलब व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन? See, traditionally, the way of educating and to produce human resource in this country has been colonial based. The existing system that we had, or we still have as of right now, it's changing with the new education policy, was based on the concept of a centralized control, and then there are colleges, Right. and, control from the central authority, and that central authority is basically the government. Right. And why would the government need it? Because the colonial powers needed that control, otherwise they would not be able to influence the culture of the country. And so now, with the new education policy, with delegation at that level, it may change, but time will tell how good or bad it turns out to be. But there's a lot of hope in that. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2020 में आया था एंड 2022 में लगना शुरू हुआ है जो। हाँ जी। एंड आई वाज रीडिंग अबाउट इट सर, 34 इयर्स के बाद एक चेंज आया है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। इसको अगर एक नज़र से देखें हम, तो दैट मीन्स कि इट टुक अस 34 इयर्स टू रियलाइज, क्योंकि 34 इयर्स लगे प्रोडक्ट को मार्केट में आने में। कैन वी से दैट? Yes, it took a lot of time, and we were late. Okay. But the fact that it has happened is a good thing, and time will tell how the implementation works, because the real problem is in the implementation, but the principle is good. And with this principle, with the right intention, it is
going to be transformational in the formal sense of education that we have in our country. right. We can actually compete with ourselves with the international universities and organizations and colleges and institutions. Right. Because option hai, we can do those things. कि जी चलो, let's go on that path. Otherwise option ही नहीं थी. Right. एंड सर आजकल वी आर सीइंग दैट एवरी कंट्रीज, वो क्या टर्म है, डी ग्लोबलाइजेशन, कि हम वापस को आ रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं. सेल्फ रिलायंस उसका एग्जांपल है. लाइक मेक इंडिया ग्रेट. राइट. मेक इंडिया ग्रेट अगेन. तो अब होना चाहिए टाइटल इंडिया का, इंडिया में भी. बिल्कुल होना चाहिए. लाइक ट्रम्प का था. हाँ, राइट. अब अपने पास तो बहुत सारे हैं, सोने की चिड़िया है ना, डायमंड का लक्कड़ बग्गा, मतलब वी कैन मेक एनी, है ना. डायमंड का लक्कड़ मैं बना रहा हूँ अभी वैसे ऑन स्पॉट. आई शुड हैव टेकन कुछ ऐसा पीकॉक टाइप का कुछ कर सकते हैं, नेशनल बर्ड भी है. मेरा पॉइंट ये था, अभी आपने बोला कि वी कैन कम्पीट बेटर विद द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज. यस. व्हाई डू वी वांट टू कम्पीट विद वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज? Because end of the day, we may like it, we may not like it. The globalization will happen. Right. It is happening. The new world order will come, and the changes are happening. We just need to be ready for it. We can't run away from it. We can be prepared for it. You can't run away from things which किसी ने कोई effort करा है, momentum है, ideas हैं, Right. and we can see them happening. Right. You can fight it. You can know how to deal with it. So let's learn how to deal with it. Once we know, automatically we'll be stronger, powerful, better. Make India great again. ये नया स्लोगन बन सकता है, बताए. बात करते करते आया, सोच बन भी सकता. बन सकता है अगर ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते. Nice. This is the moment when I'll introduce you. So this is Dr. Sandeep Singh, and he is the president of Desh Bhagat University. And listeners को अब समझ में आ रहा होगा कि जब आपने बोला ना कि इसको ट्रेडमार्क कर देते हैं, और आपकी पहले वाली बात जिसमें एजुकेशन का पूरा एक बहुत आसान शब्दों में आपने बताया, मतलब एनी आइडिया इफ़ यू नो इट वेल तभी आप उसको आसान शब्दों में बता सकते हो. और दूसरी तरफ पेज के हमने लिखा है मार्केटिंग का एक पूरा उससे कि इसको ट्रेडमार्क करा लेते हैं कि कोई भी अपकमिंग गवर्नमेंट आए, है ना, वो 60-70 करोड़ हमें वी शुड बी गिवन, क्योंकि वी सेड इट ऑन अनहर्ड. अर्लियर इट वाज अनहर्ड. नहीं, more than that, it is not just about revenue or other things. It's also about if you have a title, you're using this word, it should not be misused basically. So you have the concept of public information, but when you say it is public information, there's no control over how it is used. Right. So Right. at least you have a direction, okay, this means this. You can't twist it. That's the only thing. That's why trademark is important to anything for that matter. Intellectual property is not a bad thing. Right. It's a wonderful thing if you know how it can be utilized for the right direction. Right. Because end of the day, दुनिया में whatever has happened in the different countries and different parts of the world, we are becoming a knowledge economy, and we need to understand these things in the future. एंड इसी के ऊपर सर रिसेंटली एडिंग ऑन टू दैट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पोर्टल, बट दैट पोर्टल व्हाट इट डज इज कि अब आज से पहले व्हाट हैपेंड वाज कि जितने भी हमारे इंडियन मेडिसिन्स हैं, हाँ जी, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर जितने भी आ रहे हैं, उनका एक डेटाबेस था पूरा, एंड वो डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ था 14 पेटेंट एजेंसीज के पास वर्ल्ड वाइड. कि जैसे वो यूएस ने वो चालाकी करने की कोशिश करी थी ना कि देखो हमने पता लगाया कि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण है. हाँ जी. They tried to patent it. तो इंडिया ने डेटाबेस प्रोवाइड कर रखा था ऑलरेडी, हमारी यूनानी, आयुर्वेदिक और सिद्ध इंडियन नॉलेज सिस्टम. यस. तो वो नॉलेज सिस्टम को अब कर दिया आम. राइट. नाउ एवरीबडी कैन एक्सेस इट. तो पहले डर था कि चोरी ना हो जाए. नाउ हमने, हालांकि इट इज पेटेंट, अब हमारे पास है क्योंकि डेटाबेस में इट इज आर नाउ. इसको अब वो कुछ चोरी नहीं कर सकते. ओके. पब्लिक क्रिएटिव कॉमन्स में जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, दैट इट इज नो वन कैन
से अब मेरा है क्योंकि दुनिया का है. राइट. सो ये उसी पॉइंट को मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था कि हाउ आईपी इज नॉट बैड. Yes, absolutely. एंड आई थिंक जो आपने ये कॉन्सेप्ट बताया ना कि इंडियन सिस्टम, यूनानी, डिफरेंट नॉलेजेस, आयुर्वेदा, उसको हाईलाइट करना. इंडियन नॉलेज सिस्टम का अभी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग दैट सेगमेंट ऑल्सो, एंड दे वांट के इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर और रिसर्च और हाईलाइट हो, बिकॉज वी नीड टू कनेक्ट बैक to our old knowledge that we had, the Indian knowledge that we had, we need to rediscover it, because जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, we the knowledge system that we had is colonial, the education system that we had is colonial, but our culture, our civilization knowledge has been lost because of that reason. So we need to rediscover it basically. And बहुत कोहेरेंस दिखती है. मतलब अभी जैसे डेंगू का सीजन आता है अक्टूबर के आसपास में, बिल्कुल एवरीबडी, मतलब जिसको डेंगू हो गया वो हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है, लेकिन साथ में वो एक वो आता है ना पंजाब में और इधर चलता है नॉर्थ में, ग्लोए का पानी है जी. हाँ जी. बेल दैट इज को आप बॉईल करके. बिल्कुल. सो मतलब सिस्टम हम अब चला तो साथ साथ ही रहे थे. सो दैट इज अ साइन. यस. सो अगर कोई चीज़ इतने सालों से चल रही है एंड सक्सेसफुल है, दैट मीन्स दैट थिंग मे हैव सम ट्रुथ टू इट. राइट. एक ना शायर हैं मुनव्वर राना साहब, तो पूरा शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उनके शेर की एक लाइन थी कि जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है. एंड मतलब अगर इसका आप सोचो सर, ये बहुत गहरा शेर है, क्योंकि हम दोनों को बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं. दादी की कही हुई बात को हम बहुत हाई रिगार्ड में रख रहे हैं. दैट मीन्स जो नॉलेज का पीस है, जो इन्फॉर्मेशन है, दैट हैज़ बीन वेरीफाइड थ्रू जनरेशंस. कि अगर आपकी दादी की फोटो इट इज देयर इन योर मंदिर, दैट मीन्स वो बहुत हाई रिगार्ड में आपने रखा हुआ है उसको, एंड द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स आफ्टर वेरिफिकेशन. यस. एंड सर, डू यू थिंक कि अभी जो हमें जैसे आपने भी वर्ड यूज किया था कि रीडिस्कवरिंग, राइट, रीडिस्कवरी का हमने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, कि ये गैप सिर्फ वो कॉलोनियल गैप ही है कि इसके अलावा और भी गैप्स होंगे बीच में? अगर रीडिस्कवरी करनी है तो कहाँ तक घुस के करनी पड़ेगी? See, end of the day, there is, we have to discover our culture from and our ancient books and knowledge, basically Indian knowledge system per se that I'm trying to highlight. Okay. So in that we can discover, it doesn't need to be only Indian knowledge, because now we are also looking at from a global perspective. पहले अपनी knowledge सीखो, उसको अच्छी तरह से समझ लो. And then you should try exploring cultural civilization knowledge of other civilizations. You may learn so much from them. And maybe not in science per se, but in terms of philosophy for sure. Right. Okay. Again, science is one form of inquiry, na? Yes. Science may give you an answer, but the answer हमें फिर थोड़ा सा because अभी recently जो भी even in any field physics का उठाते हैं हम, कि फिजिक्स में देर आर सर्टेन एज ऑफ नॉलेज जहाँ पे अभी पहुँच रखे हैं हम, सिंगुलैरिटी वाला क्वांटम फिजिक्स में बात करें. बिल्कुल. सो अगेन आगे वही चल रहा है कि इसके बाद क्या होगा. इट इज़ अगेन इमेजिनेशन, एंड देन आई फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन कोई भी और ट्रेडिशनल बात में या फिर जिसमें भी फेथ या बिलीफ चाहिए वर्सेस फिजिक्स में. तो अल्टीमेटली मिल वहाँ रहा है. अपने मेथड ऑफ इंक्वायरी ऐसे कर लिया कि विच इज़ वेरीफाइबल via observation, that is scientific way of inquiry. Otherwise knowledge थोड़ा सा different काम है. Sir, what is the difference between knowledge and wisdom then? Knowledge is what you find in the books. Wisdom is more related to experience also. And utility point of view से? Utility as in? कि कहाँ काम आएगी, मतलब situations में है? Wisdom will always help you. Knowledge may or may not help you. Okay. You will grab the knowledge. जरूरी नहीं है काम आए. मुझे एक सिंपल एग्जांपल, आपने छोटे होते हुए 17 का टेबल पढ़ा होगा और बचपन में रटवाया भी गया होगा आपको स्कूल में. जरूरी तो नहीं यूज करते हो, राइट. तो वो नॉलेज है.
पर उसकी अगर आप हाँ यू आर इन दैट प्रोफेशन दैट यू नीड इट, देन इट इज विजडम, यू विल स्टार्ट यूजिंग इट. राइट. सो सर ये तो आपने डायरेक्टली आंसर कर दिया. देखो थोड़ी सी जगह छोड़ो मेरे लिए कि मैं कोई कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछूं. लवली कॉन्वर्सेशन. मुझे ना इस बात का थोड़ा डर तो था कि आप एक ऐसे गेस्ट होंगे मेरे कि जिनसे मैं सवाल पूछूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा. Then I have to तो ना आंसर करो. नहीं सर करो. ये this is my way of complimenting. थैंक यू. अभी ज़्यादा रहना है नहीं मेरे पास कि मैं शो के स्टार्टिंग में ही आपकी ज़्यादा तारीफ कर दूं. I want to keep you on edge. अगेन हमारा पॉइंट भी यही रहता है. जैसे अभी जो हमें लिसनर सुन रहे हैं तो हमने कई टीजर्स में यही बोला है जिसमें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप इससे क्या लेके जाओगे. अगेन ये आपकी एपेटाइट है. वी आर प्रोवाइडिंग यू दी अनहर्ड अनस्क्रिप्टेड रॉ. अभी आप यू कैन टेस्टिफाई. आपके पास कोई स्क्रिप्ट है या मैंने एक वर्ड की भी ब्रीफिंग दी हो आपको इसके ऊपर? नथिंग. देयर इज नथिंग. जरूरत ही नहीं है. जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन कि अभी क्या चल रहा है. हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन से, जहाँ से मैंने टर्न लिया था फॉर्मल एजुकेशन की तरफ. जिसके बाद से हमने एक जर्नी पूरी चली कि व्हाट इट इज़ एंड कल्चरल रूट्स और कॉलोनियल ब्रेक वहाँ से घूम के आए हैं. बिल्कुल. इसको ना थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर फाटक लगाते हैं. एक नई ट्रेन आ रही है. वो ट्रेन है कि सर आई नो दैट आप यू आर अ डैड एंड यू हैव 2 very young kids, and how are you planning to paint that blank canvas that you are having? So ये ट्रेन कौन सी वाली है? This seems to be more like a high speed train. Yes, वो जापान में वो बुलेट ट्रेन है, हमारी बजूका ट्रेन है. It goes way far. Especially with 2 young kids तो वो ज़्यादा ही पावरफुल होती है. वेट बढ़ गया क्वेश्चन का सडनली. See my young one is still too young, so अभी उसका अभी we still learning the basics, but the elder one is now about to be, in some time he'll start going to school. I don't want to paint anything per se in him. I just want him to be confident to deal with the situations. Okay. He'll learn what he has to learn. तो दुनिया ने सिखाना है. But he needs to just know how to handle them. Because जो अंदर से वो हिम्मत आएगी ना to handle things and to learn. Right. उतना आ जाए, rest he'll learn. जब ईद आती है ना तो छत पर कई लोग चांद का दीदार करने आते हैं और कई लोग अपने चांद का दीदार करने आते हैं. वैसे ही इस एपिसोड के अंदर हमने एजुकेशन को एक ऐसे एंगल से देखा जहाँ पे शायद आपने पहले नहीं देखा होगा. तो हो सकता है आने वाले सेशन में आपको एक और चांद दिख जाए, शायद अपने वाला चांद दिख जाए. तो चलिए चलते हैं अगले सेशन की ओर. माय नेम इज रोहित गर्चा. दिस इज अहॉय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड.